السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 24واں حصہ یعنی پارٹ 24 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 23ویں حصے میں یعنی پارٹ 23 میں کیا سنا۔ ہم نے 23ویں حصے میں سنا ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ کے بارے میں، یعنی پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے بارے میں، کہ ایمان والوں کو کس طرح پریشان کیا گیا اور ایمان والے کس طرح پریشان ہو گئے اور کس طرح مکہ والوں نے ان پر مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنے کو، یعنی شہر بدلنے کو یا ملک بدلنے کو۔ اور صحابہ اکرام حبشہ چلے گئے، مکہ والے پیچھا کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے۔ پھر وہاں کے جو بادشاہ نجاشی تھا اس سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہ لوگ باغی ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور کوئی نیا دین اپنا لیا ہے۔ لیکن نجاشی نے واپس نہیں کیا، کہا کہ میں پہلے تحقیق کروں گا۔ پھر اس نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس نے خدا کا کلام یعنی قرآن پاک سنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، متاثر ہوا اور پھر مکہ والوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں کہ ابو جہل طرح طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا رہتا تھا۔ آپ کو ستانے کے کسی بھی موقع سے وہ چوکتا نہیں تھا۔ نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے یعنی نبوت کا اظہار کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک دن ابو جہل صفا پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تنہا اور اکیلا دیکھ لیا۔ آپ کو دیکھتے ہی ابو جہل ایک دم دشمنی میں آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے لگا، آپ پر گوبر مٹی اچھالنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اسے کوئی جواب دیا۔ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اگنور کو دیکھ کر ابو جہل اور زیادہ طیش میں آ گیا اور غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور اسی پاگل پن، اسی جنون میں اس نے زمین پر جھک کر ایک بڑا سا پتھر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا۔ اور وہ یہیں پر نہیں رکا، پتھر بھی مار رہا تھا اور ساتھ گالیاں بھی بک رہا تھا اور بہت ساری اور اول فول باتیں وہ کہتا جاتا تھا۔ ادھر ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا، پتھر مار رہا تھا، تو ادھر عبداللہ بن جدعان تیمی کی ایک باندی، ایک لونڈی اپنے گھر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ عبداللہ بن جدعان تیمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ قریش کے باعزت اور دولت مند لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن ساتھ ہی یہ انتہائی عیاش طبیعت کا بدکار انسان تھا۔ یہ باندیاں خریدتا اور قبیلہ قریش کے نوجوانوں کے لیے پیشہ کرتا تھا۔ آپ لوگ باقی کا سمجھ جائے۔ اس کی باندی نے یہ منظر جب دیکھا تو اسے بے حد افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے دشمن نے خدا کے رسول کے ساتھ یہ بیجا حرکت، یہ گھٹیا حرکت کی اور اتنی زیادتی کی، اتنا ظلم کیا۔ حالانکہ انہی دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس باندی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تھی اور اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے مالک جدعان سے ڈرتی تھی۔ اس لیے
अपने ईमान का इजहार नहीं करती थी। जब उसने ये जुल्म देखा, ये ज्यादती देखी जो अबू जहल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, तो उसे बड़ा सदमा हो रहा था। वो दुख में खड़े होकर इसी से मुताल्लिक सोच रही थी। तो उसने देखा कि सामने के पहाड़ से एक शख्स आ रहा है, उसके कदमों की आहट उसे सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक भारी भरकम और ताकतवर शख्स उसकी तरफ आ रहा है। सियाह आंखें, चौड़ा चकला सीना, चेहरे से रौब और हैबत टपक रही थी। आने वाले के बगल में एक तरफ तलवार लटकी हुई थी और दूसरी तरफ तीर कमान लटकी हुई थी। बादी ने फौरन पहचान लिया कि आने वाले शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और शेर कुरैश हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत हमजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई भी थे। रजाई भाई मैं आपको समझा दूं, जब एक मां से यानी एक दाया से दो बच्चे एक साथ दूध पीते हैं तो वो दोनों का रिश्ता बन जाता है, वो रजाई भाई कहलाते हैं। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दाया थी, हजरत सोबिया, उनका दूध पिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सोबिया का कुछ दिन तक दूध पिया था। तो इस तरह हजरत हमजा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई हो गए थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे और काबे में जा रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी वो शिकार से वापस होते तो घर जाने से पहले वो काबा का तवाफ किया करते थे। और वहां कुरैश के जो बड़े बड़े पुढ़ारी और सरदार लोग मौजूद होते थे, उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की कुन्नियत अबू अम्मारा भी थी, यानी उनका दूसरा नाम अबू अम्मारा भी था। चुनांचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला जब बांदी के करीब पहुंचे तो उस बांदी ने चिल्ला कर कहा, ए अबू अम्मारा, क्या तुम लोगों में से शराफत और खुददारी बिल्कुल खत्म हो गई है? यहां तक के कबीले बनी मखजूम के बदमाश लोग तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को तकलीफें पहुंचाते हैं और तुमको उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो चलते चलते रुक गए और बांदी से पूछा, क्या कह रही हो जदान की बांदी, साफ साफ कहो। तो बांदी ने कहा, तुम्हें क्या मालूम अबू जहल ने अभी तुम्हारे भतीजे के साथ कितना गंदा और कितना बुरा बर्ताव किया। अभी वो यहां से गुजर रहे थे तो अबू जहल ने उन्हें गालियां दी, मिट्टी फेंकी, गोबर फेंका और पत्थर मारा, यहां तक कि तुम्हारे भतीजे का खून निकलने लगा। उन्हें बहुत उसने सताया। हजरत हमजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, जो तुम कह रही हो क्या तुमने खुद देखा है? तो बांदी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है जो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ किया। मैंने खुद देखा और अपनी कानों से सुना भी है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश, गजब और गुस्से से भर गए और वहां से इस नीयत से सीधा काबा पहुंचे कि अबू जहल का सामना होगा तो उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे। आज वो अपनी आदत के मुताबिक ना किसी के पास ठहरे, ना किसी को सलाम किया, सीधा अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए, जो अपने आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जाते ही अपने कमान से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया और खून बहकर उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने गजबनाक होकर अबू जहल से कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, पत्थर मारता है, बदसलूकी करता है, जबकि वो तेरे हक में अपनी जबान बंद रखता है, तुझे कुछ नहीं कहता और तू उसको तकलीफ देता है जो तुझे भलाई की तरफ और सच्चाई की तरफ बुलाता है। चूंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारूब शख्सियत वाले आदमी थे, इसी तरह उनका गुस्सा भी इंतहाई डरावना और खौफनाक था,
क्योंकि वो मक्का के बड़े पहलवानों में से एक थे। अबू जहल भी उनसे डरता था। अबू जहल ने जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्से में देखा तो अपनी सफाई पेश करने लगा और हजरत हमजा से कहा कि बात यह है हमजा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हम लोगों को पागल कहता है, बेअकल कहता है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादा के बताए हुए रास्तों के खिलाफ चलता है, यहां तक कि उसने हमारे गुलाम और बांदियों को हमसे बेजार कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और बेअकल कौन होगा कि तुमने खुदा ताला के बजाय तुम पत्थरों को पूछते हो। आज मैं ऐलान करता हूं और गवाह रहो कि आज से मैं अपने भतीजे के साथ हूं, उसी के दीन पर चलूंगा और उसी के दीन पर मरूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बनी मखजूम के लोग और अबू जहल के खानदान वाले गुस्से में आ गए। वो सवाल करने लगे कि हमजा तुम भी अब बेदीन हो गए, तुमने भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर तुम्हारे भतीजे का नया मजहब कबूल कर लिया है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने कबूल किया है, मुझे इससे रोकने वाला कौन है, वो सामने आए। मैंने उस सच्चाई को पा लिया है और मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा का रसूल है, वो जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सच है और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं अब मेरे भतीजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग सच्चे हो तो मेरे फैसले को रोक कर दिखाओ। अबू जहल ने जब हजरत हमजा को इतना गुस्से में देखा तो वो भी डर गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि अभी हमजा से मत उलझो, वो अभी बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैंने उसके भतीजे को वाकई में बहुत बुरा भला कहा है, इसलिए अभी उसको कुछ मत बोलो। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने सैकड़ों आदमियों के मजमे में अपने ईमान के कबूल करने का ऐलान कर दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान पर यानी दारे अरकम में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजरत हमजा अबू जहल को सजा देने के बाद सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और पहुंचते ही कहा कि भतीजे अब तुम खुश हो जाओ, आज मैंने तुम्हारा अबू जहल से बदला ले लिया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, मुझे इससे क्या खुशी होगी, बदला लेने से मुझे खुशी नहीं होती, मेरी खुशी तो इसमें है कि आप इस सच्चे दीन की पैरवी करें और आप पत्थरों को और पत्थरों की इबादत करना आप छोड़ दें। यह पहला मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त डायरेक्ट हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा को इस्लाम की तरफ बुलाया था। अगरचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के मजमे के सामने गुस्से में इस्लाम का ऐलान करके आए थे, मगर वो सच नहीं था, वो सिर्फ नुमाइशी ऐलान था। इसलिए अब जब हुजूर ने दावत दी तो ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उलझन में पड़ गए, कश्मकश में पड़ गए। वो सोचने लगे अब करे तो क्या करें। इसलिए इसी उधेड़ बुन में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बगैर कोई जवाब दिए घर वापस चले गए। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु रात भर जागते जागते बड़ी बेचैनी के अंदर बिना पलक झपकाए आपने पूरी रात गुजारी। तमाम रात दुआ करते रहे कि खुदा उन्हें सीधा रास्ता दिखाए और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर सुबह हुई तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि उनके दिल के तमाम शुगूक व शुबहात यानी जितने शक और जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए और उनका दिल इस्लाम की रोशनी और यकीन से जगमगा गया है। सुबह होते ही वो अपने भतीजे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह और उसके रसूल की शहादत देकर अपने मुसलमान होने का इकरार किया और अहद किया
कि मैं हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मदद करता रहूंगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना ये नबूवत के 6ठे साल का वाक़या था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुशरिकीन मक्का ने यानी मक्का वालों ने जो इस्लाम के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए रखे थे, उनमें से तो बहुत सारे ऐसे ही दूर हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा हजरत हमजा के इस्लाम लाने से बहुत खुश थे, क्योंकि कुरैश के सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर और महबूब शख्स अब इस्लाम की आगोश में इस्लाम की गोद में आ चुके थे। क्योंकि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत और पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी, बहुत हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। चौड़ी पेशानी, दरमियाना कद यानी एवरेज हाइट, छरीरा बदन, गोल बाजू, चौड़ी कलाइया, शेर व शायरी यानी पोइट्री, शमशीर जनी यानी तलवार बाजी, तीर अंदाजी और पहलवानी का तो बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। सैर व सयाहत यानी घूमना फिरना, शिकार करना, घुड़सवारी करना, ये उनका पसंदीदा मशगला यानी उनके हॉबीज थे। उनके और बहुत सारे बहादुरी के जबरदस्त वाकयात हैं, वो हम आने वाले वीडियो में जरूर सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खूब दुआएं की कि अल्लाह उन्हें इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, और साथ ही साथ अबू जहल के लिए भी दुआएं की। हाय कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ऐसे नबी पर जिसके हम उम्मती है, जो उनका सगा दुश्मन था, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, जो आपको गालियां बकता था, पत्थर मारता था, आपका खून निकालता था, जब आप सजदे में जाते थे तो मैला डाल देता था, उजड़ी डाल देता था, लोगों को उकसाता था, आपके कत्ल के प्लानिंग करता था। मगर ऐसे नबी पर हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान, कि ऐसे दुश्मन के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले और जन्नत में जाने वाला बन जाए। क्या ऐसा नबी मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआएं की कि अल्लाह, अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल और उमर बिन खत्ताब, ये सबसे ज्यादा ताकतवर दो लोग माने जाते थे, उनके लिए आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन दो आदमियों के जरिए इस्लाम का बोलबाला फरमा, तुझे जो भी पसंद है उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक नसीब फरमा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 25वें हिस्से में यानी पार्ट 25 में हम सुनेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किसके हक में कबूल हुई और किसने इस्लाम को कबूल किया, और किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनकी राह में क्या मुश्किलें पेश आई, और उनके इस्लाम लाने से किस तरह इस्लाम को कुव्वत और ताकत मिली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिली। ये हम आने वाले पार्ट 25 में यानी 25वें हिस्से में सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इन वीडियोस को शेयर करके और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हौसला अफजाई फरमाए, हमारी हिम्मत अफजाई फरमाए। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।